Okay, so hello students. I hope all of you are doing perfectly well. Uh, just hang on for a moment. आप लोग ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद शुरू करते हैं। बच्चों जल्द से जल्द जुड़ जाओ हमारे साथ और do one favor that share the link of this class to as many friends as you have so that more and more people get to see this and they get benefited by this. So please share the link with all of your friends and your classmates. ओके तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि दिल से चैंपियन सेल चल रहा है जहाँ पे like there's an enormous amount of sale which is offered by super coaching of course. So all the people, all the crowd, all the aspirants who are taking preparation for CSIR NET, this is the time. Go apply now. And like of course, as you can see that it's get 70% to 35% off. Success guaranteed. The whole course price is 13,999, and that course is available for you only at price 3,015. So what's stopping you? The validity of this offer is very less, from 20th to 22 of November. So that's why I'm telling you, do hurry up and don't wait. Yes, of course, you will have to use a promo code for this, and the promo code that you have to use is Sourav. The promo code that you have to use to avail this offer is Sourav. I'm writing it over here. Promo code is Sourav. So do use this promo code and get all this offer. Okay. So the whole course price is 13,999, and that course is available to you at 3,015 rupees. So do hurry up. I think this is the best chance that you will get for a very wrap up revision and all these sorts of things. Okay. Fine. बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस कैसे निकाला जाता है और सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी ऑल दिस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वी विल फाइंड आउट। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे कि if in direct space the primitive translational vectors are, if in direct space the primitive translational vectors are a b and c। ध्यान से मैंने बोला है प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, मतलब ये वेक्टर से जो यूनिट सेल तैयार होगा वो यूनिट सेल एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है? सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम रहेगा, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन वन एटम विल बी देयर। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट स्पेस में प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, दोस आर बेसिकली योर ए बी सी। So in this A, B and C, these are your primitive translation vectors, and with the help of these vectors, you can make a primitive unit cell. तो अगर इतना यहाँ तक हमारा क्लियर है तो हमें पता है कि डायरेक्ट स्पेस में जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है वो हमारा A, B and C है।
then in reciprocal space the primitive translational vectors are given by कैसे दोगे रेसिप्रोकल स्पेस में प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स? सर हम लोग लिखेंगे S स्टार is equals to 2 pi into B cross C by A dot B cross C. That's one thing we can write. Similarly, I can write B star is equals to 2 pi C cross A divided by A dot B cross C. यहाँ पे तुम लोग थोड़ा देख लो कि यहाँ पे A B C जो है वो हमारे प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं फ्रॉम डायरेक्ट स्पेस, और A स्टार B स्टार C स्टार जो है वो हमारे प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है फ्रॉम रेसिप्रोकल स्पेस. तो C स्टार को लिख सकते हैं 2 pi C के लिए A cross B divided by A dot B cross C. तो ये सिनेरियो है हमारे यहाँ. अब अगर ये तीन चीज यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? We can talk about the reciprocal lattice of simple cubic. Let's do it. Reciprocal lattice of simple cubic lattice. Reciprocal lattice of simple cubic lattice कैसे करोगे? देखो, अगर हम लोग बात करें एक सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए तो यूजुअली डायरेक्ट स्पेस में जो लैटिस बनाता है वो दिखने में कैसा होता है भाई? वो दिखने में थोड़ा ऐसा होता है. एक क्यूब है हमारे पास, ये एक मान ली क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, और इस क्यूब में 8 कॉर्नर्स में हमारे 8 एटम्स है. यहाँ पे 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 और एक यहाँ. तो ये जो 8 एटम्स है, हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन टू वन यूनिट सेल इज 1/8. तो अगर 8 है तो इसके लिए एक बात बताओ, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8. 8 एटम्स है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है. फॉर दिस यूनिट सेल तो कितना आएगा? 1 आएगा. तो इस यूनिट सेल के अंदर 1 एटम है. तो जरा मुझे एक बात बता, जो हम लोग कन्वेंशनल यूनिट सेल बनाते हैं केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, वही हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है. जो कन्वेंशनल यूनिट सेल हम बनाते हैं प्रिमिटिव उसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, वही हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है. और तो लैटिस वेक्टर्स क्या होगा? देयरफॉर in case of SC lattice, the conventional unit cell is our primitive unit cell. Primitive unit cell. The conventional unit cell is our primitive unit cell. जो हमारा conventional unit cell है वही हमारा primitive unit cell है. तो अगर ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के वेक्टर्स क्या क्या होंगे भाई? Therefore the primitive translational vectors of simple cubic lattice are A vector जो है that's my A I cap, B vector जो है that's my B J cap, C vector जो है that's my C K cap. सॉरी, यहाँ पे B और C का मैग्नीट्यूड एक्चुअली A ही है क्योंकि वो क्यूबिक लैटिस है. A. Therefore वॉल्यूम क्या होगा बच्चे? Volume of the primitive unit cell in direct space is equals to A dot B cross. ऐसे निकाल सकते हो. तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? A क्यूब आ जाएगा. अगर हम लोग अब रेसिप्रोकल लैटिस निकालें तो इसके लिए हमारा S स्टार क्या आएगा?
A star is equals to 2 pi into B cross C divided by A dot B cross C। हालांकि यहाँ पे देख लो 2 पाई इंटू बी है हमारा ए जे कैप प्लस ए के कैप डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा हो जाएगा ए क्यूब, दैट मींस 2 पाई बाई ए into j cap cross k cap is equals to I cap, 2 pi by a into I cap, that's all I'm gonna do. Similarly तुम बता सकते हो, similarly I can show you that b star जो होगा वो होगा 2 pi into c cross a divided by a dot b cross c। तो भाई यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, देख c cross a मतलब c है हमारा a k cap और a है हमारा a I cap। तो k cap plus I cap is your j cap, so it will just become equals to a square j cap, नीचे एक क्यूब है तो 2 pi by a into this thing will become equals to 2 pi by a into j cap, and c star will be or equals to 2 pi into a cross b divided by a dot b cross c। जैसे प्रीवियस डे में फॉर्मूला प्रूफ किया था, तो 2 pi by a into k cap। तो हमें जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स मिले हैं भाई, वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या है, 2 पाई बाई a I कैप, 2 पाई बाई a j कैप, 2 पाई बाई a k कैप। तो जरा यहाँ पे देख, अगर हम लोग प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की बात करें डायरेक्ट स्पेस में, तो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर है, तीन डायरेक्शन में ही a है। रेसिप्रोकल स्पेस में जो वेक्टर मिला है, मतलब जिन वेक्टर से हमारा यूनिट सेल बनेगा, वो भी क्या है 2 पाई बाई a 2 पाई बाई a 2 पाई बाई, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, I कैप j कैप k कैप। अब मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली डजंट मैटर, हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल दिखने में कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। तो हम बता सकते हैं कि ये जो तीन वेक्टर्स हमारे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकल स्पेस में प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम है एज दैट ऑफ माय डायरेक्ट स्पेस, सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क है, बाकी ये भी एक क्यूबिक ही यूनिट सेल बना रहा है। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो डायरेक्ट स्पेस में उसका जो यूनिट सेल बनता है दैट्स अ क्यूबिक यूनिट सेल, उसका जो रेसिप्रोकल स्पेस में यूनिट सेल बनेगा या रेसिप्रोकल लैटिस जो बनेगा, वो भी एक सिंपल क्यूबिक लैटिस ही होगा with the side length of 2 pi b। So therefore I can conclude that the reciprocal lattice of a simple cubic lattice is also a simple cubic lattice। Not only that, volume in reciprocal space, मतलब वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल स्पेस क्या होगा, 2 पाई बाई a, बेसिकली हम लोग जैसे दिखाते हैं दैट इज a star dot b star क्रॉस c star। तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई लोग, 2 पाई बाई a का होल क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम इन रेसिप्रोकल स्पेस। ठीक है, ये सिनेरियो। यहाँ पे एकदम इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ सकते हैं कि इसके उसके ऊपर एक डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर, जो क्वेश्चन गेट में आया था। इस क्वेश्चन के में गेट बोला गया है द रियल स्पेस प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स आर, रियल स्पेस और डायरेक्ट स्पेस, द hang on, the real space primitive lattice vectors are a equals to a x cap and b equals to a by 2 x cap plus root 3 y cap, a by 2 x cap plus root 3 y cap। The reciprocal space unit vectors full stop
the reciprocal space unit vectors of this lattice are respectively A star and B star given by ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 2 पाई बाई ए एक्स माइनस 2 पाई बाई ए एक्स माइनस वाई बाई रूट 3 and 4 pi by a root 3 into y का। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि 2 pi by a x plus 2 pi by a x plus y by root 3 comma 4 pi by a root 3 into y का। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि 2 pi by a root 3 2 pi by a root 3 into x cap and 4 pi by a x cap by root 3 plus y cap and ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 2 pi by a root 3 x cap 2 pi by a root 3 x cap and 4 pi by a 4 pi by a x cap by root 3 minus y। These are my 4 options। अब सर दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमें यूजुअली हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े हैं वो हम 3 डायमेंशन के पढ़े थे कि अगर हमारे 3 डायमेंशन में यूनिट सेल के जो 3 वेक्टर्स है वो दिया गया है बेसिस वेक्टर्स है तो हम लोग रेसिप्रोकल स्पेस निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें 2D के लिए बोला गया है। ये क्वेश्चन गेट 17 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तेरा आया था गेट 17 में। ये गेट 17 का क्वेश्चन। बट यहाँ पे सिर्फ 2D के लिए बोला जा रहा है। 2D के लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरा जो लास्ट वेक्टर है उसको सिंपली हम लोग z कैप मान लेंगे। ठीक है, जो लास्ट वेक्टर है उसको हम लोग सिंपली z कैप मान लेंगे। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, a जो हमारा बोल दिया गया है a x कैप, b क्या है हमारा सर a/2 x कैप प्लस रूट 3 j कैप, j कैप एंड c क्या बोला गया है बच्चों, c हम लोग मान रहे हैं सर हमारा z कैप। हम ये मान के चल रहे हैं कि c हमारा क्या है z कैप। अगर ये तीन चीजें हमें दिया गया है, अगर ये तीन चीजें हमें दिया गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे डायरेक्ट वेक्टर्स हैं। These are the primitive translational vectors of डायरेक्ट लैटिस। ये थी तो रेसिप्रोकल लैटिस के लिए क्या होगा, a स्टार होगा हमारा 2 पाई इनटू b क्रॉस c डिवाइडेड बाय a डॉट b क्रॉस c। ये अगर तुम करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इनटू b क्रॉस c डिवाइडेड बाय a क्रॉस b क्रॉस c। तुम लोग करके देख लेना। यूजुअली जो वेक्टर्स है उनके बीच में तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करवाना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे b दिया गया है, c दिया गया है, a दिया गया है, तुम्हें सभी पता है। तो 2 पाई इनटू b मतलब आई कैन राइट a/2 x कैप प्लस रूट 3 y कैप क्रॉस z कैप divided by a dot b cross। a is my a x cap dot a/2 x cap plus root 3 y cap cross z। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 पाई बाई a x cap minus y cap by root 3। And similarly you can find out b star also।
2.2 for B star, I'm gonna write C cross A by A dot B cross C. भाई लोग यहाँ पे जरा देख लो कि C cross A डिवाइडेड बाय A dot B cross C अगर तुम करोगे वहां पे ऊपर में सारे वेक्टर दिए गए हैं तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 पाई बाई 3 into A y कैप। ऐसा कुछ है 4 पाई बाई 3 y कैप और ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। वैसे सेम एक क्वेश्चन सीएसआई नेट में भी दिया गया था, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन was given in CSIR net also. The basis vectors of a two-dimensional Rayleigh lattice are the basis vectors of a 2D Rayleigh lattice are Rayleigh lattice are बोल दिया गया है I cap by 2 plus root 3 J cap by 2 I cap by 2 plus root 3 J cap by 2, this is my A, and B is equals to I cap by 2 minus I cap by 2 minus root 3 J cap by 2, ये बोल दिया गया है। पूछा गया what are the reciprocal vector reciprocality vectors, what are the reciprocality vectors, क्या करोगे 2D के लिए बोल दिया गया है, तुम लोग C के लिए मान लोगे what are reciprocal lattice vectors, कैसे निकालोगे, यहाँ पे A बोल दिया गया है, B बोल दिया गया है, तो तुम मान लोगे लेट्स सी है तुम्हारा सेट, C को ये मान लोगे और देन फॉर्मूला ये दिसंबर 19 का क्वेश्चन। ये दिसंबर 19 का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, हमें A बोल दिया गया है सर, ये हमारा A वेक्टर है, A बोल दिया गया है, B भी बोल दिया गया है, अगर A बोल दिया गया है B बोल दिया गया है और जो C है हमारा वो हम लोगों ने Z कैप मान लिया है, तो यहाँ से मैं A स्टार B स्टार निकाल सकता हूँ फॉर्मूला से, बस निकाल लेना काम। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं रेसिप्रोकलिटी में यूजुअली। दूसरी चीज जो है बीसीसी के लिए एक बार निकाल के देख लेते हैं, आ जाओ। हम लोग अब करेंगे रेसिप्रोकल लैटिक ऑफ बीसीसी सिस्टम। क्या होगा सर, कैसे निकालेंगे? देखो बीसीसी के लिए हमारे पास जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है वो यूनिट सेल एक प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है। क्यों नहीं है बता, क्योंकि बीसीसी के लिए हम हमारे पास जो कन्वेंशनल यूनिट सेल है उस यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स में 8 एटम है और एक एटम है जो बीच में एकदम बॉडी सेंटर में लाइक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो 8 कॉर्नर्स में 8 एटम रखे हो वो 8 एटम का कंट्रीब्यूशन, हर एक का कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल में 1/8 करके आता है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 प्लस बॉडी सेंटर में एक एटम, टोटल 2 एटम होते हैं। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमें पता है कि हमेशा एक ही एटम रहेगा पूरे यूनिट सेल में, 2 एटम नहीं रहेगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, कन्वेंशनल यूनिट सेल नहीं लेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल लेंगे। फॉर बीसीसी वी विल कंसीडर द प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये दिक्कत है कि बीसीसी के लिए प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, दैट्स ऑल यू हैव टू डिसाइड एंड थिंक। नाउ टेल मी, how will you take the primitive unit cell vectors for BCC? How will you think of the primitive unit cell vectors of BCC? Just excuse me for a 1 minute and I'm just coming back. Yes. तो बीसीसी के लिए हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल वेक्टर्स बताना है, बताओ कैसे करोगे। ऐसे वेक्टर्स में चिंता करना है जो वेक्टर्स डेफिनेटली एक क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी बनाएगा बट उसमें नंबर ऑफ एटम्स एक ही हो, उसमें एक ही एटम रहेगा, एक से ज्यादा नहीं। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। कैसे करेंगे सर इसको? सर
the conventional unit cell for BCC is not a primitive unit cell. Therefore, we must discover the primitive unit cell, the primitive translational vectors of BCC in direct space. मतलब डायरेक्ट स्पेस में ऐसे तीन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे जिससे अगर मैं क्राइस्टल बनाऊं तो मेरा क्या बनेगा भाई, एक बीसीसी लैटिक में। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं ए, मैं लिख सकता हूं ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। डी को मैं लिख सकता हूं ए बाई टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और सी को मैं लिख सकता हूं ए बाई टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये तीन चीजें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई। अगर ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जरा बताओ, therefore the volume of primitive unit cell, primitive unit cell of BCC in direct space क्या होगा? ए क्यूब नहीं होगा भाई। अगर गलती से भी सोच रहे हो ए क्यूब होगा तो बहुत गलत सोच रहे हो। ए क्यूब कन्वेंशनल यूनिट सेल का वॉल्यूम है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर ये तुम करके निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा ए क्यूब बाई टू। तो हमेशा ध्यान रखना बीसीसी के लिए जो प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम आता है वो होगा ए क्यूब बाई टू, और प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स इन डायरेक्ट स्पेस तुम्हारे आएंगे ये तीन वेक्टर्स। अगर ये तीन वेक्टर पता है, वॉल्यूम मुझे पता है, तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर्स। therefore रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर्स क्या होंगे भाई? मेरे रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर्स क्या क्या होंगे? I can write them as, if I wish to write down the reciprocal latic vectors, so how will I do that? तो उसके मैं लिख सकता हूँ that A star will be equals to 2 pi into B cross C divided by A dot B cross। ये मैं लिख सकता हूँ 2 pi into B cross C divided by A dot B cross। That's all I can write। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ तो इसके बाद तुम लोग जरा देख लो 2 pi into B cross C divided by A dot B cross C। तो यहाँ पे A dot B cross C तो पता है कि A cube by 2 है, तो ये करने के बाद जो आ जाएगा दैट इज 2 pi by A I cap प्लस J cap। सर कहाँ से मिला बेटा? बहुत आसान है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो B, C और A है इस जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दिया, A B C, ये जो तीन वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी ये वैल्यूज पुट कर दिया। करने के बाद A स्टार कैलकुलेशन करके मेरा ये आ रहा है। इसके बाद अगर मैं मान ले B स्टार का कैलकुलेशन करूँ, B स्टार का कैलकुलेशन करूँ वो आ जाएगा 2 pi into C cross A divided by A dot B cross C। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 pi by A into J plus K, 2 pi by A into J plus K। और इसके बाद अगर मैं मान लिया C स्टार का कैलकुलेशन करूँ तो क्या आ जाएगा 2 pi into A cross B divided by A dot B cross C। तो इसके लिए देख भाई, इसके लिए आ जाएगा हमारा 2 pi by A into 2 pi by A into K plus I। That's all। तो ये तीन वेक्टर आ जाएंगे।
हालांकि ये जो तीन वेक्टर्स आए हैं, ये तीन वेक्टर मेरे प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं फॉर एफसीसी लैटिव. So that's why these three vectors A star, B star, and C star are same as the primitive translational vectors of FCC level. Therefore, I can say the reciprocal lattice of a BCC is FCC lattice. बीसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो हमारा कौन सा है? एफसीसी लैटिस. बीसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो एफसीसी लैटिस. इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें एफसीसी के लिए क्या होगा, देखो फॉर एफसीसी the conventional unit cell consists of 4 atoms. Therefore, it's not a primitive unit cell. Now I can write the primitive translational vectors of FCC lattice in direct space are, I can just write down the primitive translational vectors of FCC lattice in direct space, and those are, जैसे मैंने यहाँ पे पहले पेज में लिखी थी आया, तो तुम लोग यहाँ से पता है, सिर्फ 2 पाई बाई ए की जगह पे यहाँ पे इसको a/2 लिख सकते हो, कोई रेसिप्रोकल करने की जरूरत. क्या हो जाएंगे बेटा? ए होगा तुम्हारा a/2 I कैप प्लस j कैप, b होगा a/2 j कैप प्लस k कैप, एंड c होगा a/2 k cap plus I cap. Exactly same as what we get as the reciprocal lattice vectors of BCC. You see I cap plus j cap, j cap plus k cap, k cap plus I cap, and all the magnitudes are same. तो ये हमारे प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है ऑफ एफसीसी लैटिस. तो इसके वॉल्यूम क्या होंगे भाई? वॉल्यूम इन डायरेक्ट स्पेस. वॉल्यूम क्या होगा बताओ? वॉल्यूम तो सर हमेशा हम लोग लिखते हैं a डॉट b क्रॉस c से, तो a डॉट b क्रॉस c, वॉल्यूम आ जाएगा a क्यूब बाई 4. तो ध्यान रखना सिंपल क्यूबी के लिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर का वॉल्यूम ये होगा, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर से बना हुआ यूनिट सेल का वॉल्यूम ये होगा. बॉडी सेंटर्ड क्यूबी के लिए प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा a क्यूब बाई 2, और एफसीसी के लिए प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा a क्यूब डिवाइडेड बाई 4. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखना. ठीक है, ये सब चीजें क्वेश्चंस में फटाक से आ जाते हैं, और वहां पे सीएसआर में अगर याद नहीं आया तो फिर पूरा 5 मार्क्स जवाब याद दोगे. तो बताओ यहाँ पे अगर हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकालें तो वो वेक्टर्स दिखने में कैसे होंगे? Therefore, the reciprocal lattice vectors of
FCC are given by, what can you do? A star 2 pi B cross C by A dot B cross C. A star equals 2 pi B cross C divided by A dot B cross C. अब यहाँ पे हमने B cross C, ये जो B है ये जो C है उठा के वहां पटक दो, और A dot B cross C का तो पता ही है, A cube divided by 4, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 pi by A I cap plus J cap minus B star भी हम लोग लिख सकते हैं, आ जाएगा 2 pi C cross A by A dot B cross C, जो बच्चे हम लोग लिख सकते हैं as 2 pi by A minus I cap plus J cap plus, और C star हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2 pi A cross B divided by A dot B cross C। तो इसके लिए क्या आ जाएगा भाई, इसके लिए हमारा आ जाएगा 2 पाई बाई ए इंटू, ये जो सिनेरियो है देख यहाँ पे है हमारा आई कैप जे कैप कैप, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो वेक्टर्स आए हैं 2 पाई बाई ए, यहाँ पे देख आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। जरा यहाँ पे देख तो बीसीसी के लिए हम लोगों ने प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर सेम नहीं लिखे थे, ये जो बीसीसी था आई कैप प्लस जे कैप, मैग्नीट्यूड की तरफ ध्यान मत दे, मैग्नीट्यूड तो चलो ठीक है सेम मैग्नीट्यूड है तीनों वेक्टर्स का, वो वहां पे भी सेम है 2 पाई बाई ए, लेकिन वेक्टर्स को देख आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पे जो ये तीन वेक्टर्स आए हैं एग्जैक्टली सेम वेक्टर्स आए हैं, तो ये क्या है, ये है हमारा प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स ऑफ बीसीसी, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ बीसीसी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द अबव vectors are similar to the primitive translational vectors of BCC in direct space, of BCC in direct space। तो ठीक है, therefore हम लोग बता सकते हैं that the reciprocal lattice, the reciprocal lattice of a FCC lattice is a BCC, that's all I can say, the reciprocal lattice of an FCC lattice is a BCC lattice। बस ये चीजें, बाकी और कुछ नहीं। If you have any questions to ask, you can definitely ask me। बाकी स्कैटरिंग फैक्टर वगैरह हम लोगों ने करा लिए हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कर। ये क्वेश्चन गेट में आया था 2020 में, गेट 2020 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसीडर अ सिंपल क्यूबिक मोनोटोनिक ब्रेवाई लैटिस व्हिच हैज अ बेसिस विद वेक्टर्स
Consider a simple cubic monoatomic graphite lattice. Consider a simple cubic monoatomic graphite lattice with basis vectors r1 equals to 0 and r2 is equals to a by 4 x by z. A by 4 x cap plus y cap plus z cap. That's all I can say. यहाँ पे a is my lattice parameter. a क्या है भाई? Lattice parameter. Very good. अब बोला गया है कि the Bragg reflection is observed due to the change in wave vector between the Bragg reflection is observed due to the change in wave vector between the incident and the scattered beam between the incident and the scattered beam between the incident and the scattered beam as given by k equals to n1 g1 plus n2 g2 plus n3 g3. n1 g1 plus n2 g2 plus n3 g3. That's all they have provided. Where g1, g2 and g3 are primitive reciprocal lattice vectors. बड़ी अच्छी बात है. For n1 3, n2 3 and n3 2 for find the geometrical structure. Find the geometrical structure factor. कैसे निकालोगे भाई geometrical structure factor? देखो एक के लिए बोला गया है r1 is equal to 0. That means r2 equals to बोला गया है a by 4 x cap plus y cap plus z cap. तो जो basis atoms है, therefore basis atoms are situated at 0 0 0 and a by 4 a by 4 a by 4 ये तो a by 4 ना लिखे तुम लोग 1 by 4 भी लिख सकते हो अगर उसके लिए देख रहे हो तो 1 by 4 1 by 4 1 by 4. therefore s क्या होगा जो हमेशा होता है summation over basically fn into exponential of
you can write 2 pi into xn hn plus yn kn plus zn ln। यहाँ पे दो ही एटम है सर, और n इक्वल्स टू फिर 1 to 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे सर दो ही एटम है, यहाँ पे दो एटम है, और Fn इक्वल्स टू, अगर F1 इक्वल्स टू F2 मान लूं तो यहाँ पे अगर उसको F लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ रहा है, एक तो तुम्हारा 0 0 0 है, तो यहाँ पे x and y and z का 0 0 पुट कर दूं तो 1 आ जाए। लास्ट दूसरा क्या होगा, दूसरा 1/4 1 को यहाँ पे अगर 1/4 कॉमन ले लूं तो पाई बाई 2 इंटू h प्लस k प्लस l। एक्सपोनेंशियल ऑफ ये आ जाएगा हमारा, बेसिकली अगर 1/4 1/4 1/4 लिख दूं तो डेफिनेटली वो कॉमन चला जाएगा, तो पाई बाई 2 इंटू h प्लस k प्लस, आई कैन राइट दिस थिंग। अब यहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि n1 n2 एंड n3, मतलब जो हमारे जो ज्योमेट्रिकल जो इस प्रोबेबिलिटी के जो नंबर्स हैं वो n1 n2 n3 हमें 3 3 2 बोला गया। तो ये अगर ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 + 3 + 2, 6 + 2 is 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा f1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 + 3 + 2 that is 8, so 8/2 is 4, so exponential of 4 pi, so exponential of 4 pi means cos square plus square, तो 1 that is equals to 2f। अगर ये 2f आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर बोला गया है, हालांकि f तो पता नहीं, f के यूनिट्स में अगर लिखूं तो ये आंसर क्या आना चाहिए, अगर मैं लिखूं f के यूनिट्स में तो ये आंसर आना चाहिए 2, आंसर आना चाहिए। बताओ, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो बता सकते हो, otherwise I'm signing off। If you have any question you can tell me, otherwise I'm signing off। Okay then, thank you very much, thank you।